Dear students, I hope you all are fine. Students, we started reading the chapter number 4, poem If on page number 24 of class 7. The poem If by Rudyard Kipling. So students, we have already read stanza first and now moving to the next stanza 2 on page number 25. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. Students, first two lines, if you can dream and not make dreams your master, tells us to do something bigger, we should dream first. But the poet also reminds us not to be guided by unrealistic dreams. So we should dream to reach the great heights in life, but keeping the reality in mind. We should be able to think over a matter but should not make the thoughts our aim. So our thinking should be scattered, misleading us away from the target. Students, to do something bigger, we should dream first. कुछ बड़ा करने के लिए हम उसके लिए ड्रीम देखते हैं कि हमने ये करना है अपनी लाइफ में. वी शुड हैव वन एम. ठीक है, बट ऐसा नहीं कि वो ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर. ड्रीम्स को अपना मास्टर मत बनने दो. ठीक है, जो हम कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम उसको सोचकर उसको अपना ड्रीम बनाकर अपना एम लेकर चलेंगे. नॉट द थिंकिंग. सोच तो हम बहुत कुछ सकते हैं. ठीक है बच्चे, हमारे माइंड में काफ़ी सारी थॉट्स आती हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट वी कैन मेक आवर थॉट्स आवर एम. थॉट्स को हम अपना एम नहीं बना सकते. एम के लिए हमारी थॉट्स हो सकती हैं. ठीक है, कुछ पाने के लिए हम सोचते हैं, पर अपनी सोच को हम पाना नहीं कह सकते. इफ़ यू कैन मीट विद द ट्रायम्फ एंड डिजास्टर and treat those two imposters just the same. Students, life is a combination of success and failure, joy and sorrow, good times and bad times. But we should accept both and face both situations with similar treatment. Here, the poet tells us that the triumph and disaster, capitalizing and calling them two imposters, pretenders and cheaters. That means क्या होता है, जब हमारी लाइफ में कोई खुशी आती है हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब हमें कोई दुख आता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. दैट मीन्स हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं. In both cases, our regular course of work is hampered. That is why the poet called triumph and disaster two impostors. He asks us to treat them similarly with smiling face. वो हमें बता रहा है कि जब हमारी लाइफ में सक्सेस आती है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. ठीक है, और दुख आ जाता है, दोनों का जो इम्पैक्ट है वो हमारे काम पर पड़ता है. उसकी वजह से हम अपनी एम को भूल जाते हैं, हम अपनी डेली ड्यूटी को भूल जाते हैं. So in short, don't be too happy or too sad under any circumstances. Fine. Next line, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. Students, here the
poet is telling us we have to bear the tough situation where our speech or statement is distorted by someone to befool others. Sometimes हम किसी को अपनी कोई बात बताते हैं, अपना सच बताते हैं, सच्ची बात बताते हैं, पर वो बंदा हमारी इसी बात को किसी और वे से किसी के सामने प्रेजेंट करता है. उस टाइम वी हैव टू होल्ड आवर नर्व्स. हमें वी हैव टू बी कीप क्वाइट, वी शुड हैव पेशेंस. हमें वहाँ पे पेशेंस रखना है, वहाँ पे लड़ाई नहीं करनी. वी हैव टू होल्ड आवर नर्व्स इवन आफ्टर सीइंग दैट आवर फेवरेट थिंग दैट वी बिल्ड विद ऑल आवर एफर्ट्स एंड इज ब्रोकन. स्टूडेंट्स, समटाइम्स क्या होता है, हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें हमारी बहुत सारी एफर्ट्स, हमारा बहुत सारा टाइम लगता है और वो चीज़ टूट जाती है. वहाँ पे हमें अपना टेम्पर लूज नहीं करना. देन वी हैव टू पिक अप द स्कैटर्ड पार्ट्स एंड बिल्ड इट ऑल ओवर अगेन. तो हमें क्या करना है, वहाँ पे वो जो चीज़ टूट गई है उसके टूटे हुए जो पीसेस हैं उनको वापस से लेना है और उस चीज़ को दोबारा बनाना है. स्टूडेंट्स, इस लाइन का ये मीनिंग है टू कीप आवर कूल इज़ नॉट ईजी इन सच सिचुएशन बट पेशेंट एंड मेंटल टफनेस वुड हेल्प अस बिल्ड दैम अगेन. लाइफ में कभी भी कोई काम ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ काम किया और वो ख़राब हो जाता है काम बना बनाया. तो वी शुड हैव द कैपेबिलिटी टू रीबिल्ड दैट थिंग्स. हमें उस चीज़ को दोबारा करने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए. बट ये सब कुछ कैसे हो सकता है? विद पेशेंस. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा.